Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have done some questions of miscellaneous exercise regarding vectors, and here we are on again on this miscellaneous exercise, and there we are on question number that's question number 17, rather question number 14. So here we are on question number 14, and in that question number 14 we have three vectors: a vector, b vector and c vector. All the three vectors have equal magnitude and all the three vectors are mutually perpendicular to each other. We need to prove that the vector a plus b plus c is equally inclined to vectors a, b and c. Means you have three vectors: a vector, b vector and c vector. All the three vectors have same magnitude, that's magnitude of a is equal to magnitude of b is equal to magnitude of c, and further all the three vectors are perpendicular, mutually perpendicular to each other. Means a dot b must be equal to 0, because when vectors are perpendicular to each other then their dot product is obviously equal to 0. तो a dot b 0 के बराबर होगा, b dot c भी 0 के बराबर होगा और c dot a भी 0 के बराबर होगा, because all the three vectors are mutually perpendicular. अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों वेक्टर्स का अगर आप सम कर दोगे तो यहां से जो वेक्टर आएगा, सपोज उसको v से डिनोट कर देंगे, तो ये v वेक्टर है इक्वली इंक्लाइनेड विद a, b एंड c. मतलब ये v वेक्टर सेम एंगल बना रहा है विद a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर. तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा. तो जिगरा यहां पे मेंशन कर देंगे, given a vector, b vector and c vector are vectors of are mutually perpendicular vectors, are mutually perpendicular vectors, mutually perpendicular vectors of equal magnitude. तो इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर भी हैं. हाँ जिगरा, जब ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं और तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, and we will keep that condition as condition number first also. और ये आपस में परपेंडिकुलर भी हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट, सो a डॉट b मस्ट बी इक्वल टू 0, b डॉट c मस्ट बी इक्वल टू 0 स्केलर, c डॉट a again must be equal to 0 scalar. The dot product of two vectors is a scalar quantity and it is given that a is perpendicular to b, so their dot product must be equal to 0. b is perpendicular to c, so their dot product must be equal to 0, and c is perpendicular to a, so again their dot product must be equal to 0. Now we need to prove that the vector a plus b plus c, जिसका हमने suppose नाम रखा v, is making equal angle with vectors a, b and c. So suppose इस वेक्टर ए बी सी को डिनोट करेंगे हम v से. लेट वेक्टर v इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एंड हमें नहीं जिगरा पता कि ये सेम एंगल बना रहा है, ये वेक्टर v सच में सेम एंगल बना रहा है विद a, b एंड c, हमें नहीं पता. सपोज हम कंसिडर करेंगे कि ये a वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, b वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है और c वेक्टर के साथ गामा एंगल बना रहा है. फिर हमें लास्ट में मिलना चाहिए कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सो देन वी कैन प्रूव दैट द वेक्टर v इज इक्वली इंक्लाइनेड टू a, b एंड c. लेकिन यहां पर हम लेट करेंगे एंड लेट इट मेक्स एंगल्स, हाँ जिगरा, अल्फा, बीटा एंड गामा with vectors a, b and c respectively.
तो जिगर एक्चुअली हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वेक्टर v इज मेकिंग सेम एंगल विथ a b एंड c वेक्टर्स, लेकिन हमें नहीं पता कि सेम एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम सपोज यहां पे लेट करेंगे कि ये वेक्टर a प्लस बी प्लस सी जो है, ये वेक्टर v जो है, इट्स मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ a वेक्टर, it's making an angle beta with b vector and it's making an angle gamma with c vector। तो लास्ट में हमें मिलना चाहिए कि अल्फा बीटा एंड गामा आर सेम, तब हम प्रूव कर पाएंगे कि वेक्टर v इज इक्वली इंक्लाइनेड टू a b एंड c। ठीक है जिगर, तो हमने कंसिडर किया है कि a अल्फा ये मेक कर रहा है, ये वेक्टर v अल्फा एंगल बना रहा है विथ a, बीटा एंगल बना रहा है विथ b, गामा एंगल बना रहा है विथ c। तो अल्फा जो है दैट्स एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड a वेक्टर। हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है उसके लिए एक्सप्रेशन पढ़ी है, क्या है वो जिगरा, cos थीटा, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू v1 डॉट v2 दैट इज देयर डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v1 into magnitude of v2 that is the product of their respective magnitudes। ये जिगरा हमने एक्सप्रेशन ये कैलकुलेट की है, डिड्यूस किया है, ये एक्सप्रेशन हमने डिड्यूस कर दी है जब हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स v1 एंड v2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स। तो आपके पास अभी v1 के बदले v है और v2 के बदले a है, तो आप v और a के बीच में एंगल जो है उसके लिए एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। सो देयरफॉर cos ऑफ अल्फा इज इक्वल, तो सबसे पहले हम इवॉल्युएट करेंगे cos अल्फा एंड दैट्स इक्वल टू cos, व्हाट इज जिगर अल्फा, अल्फा इज एन एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड a, सो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड a वेक्टर, क्योंकि अल्फा जो cos इज cos और अल्फा जो है दैट्स एन एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड a वेक्टर, सो एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड a वेक्टर एंड दैट्स इक्वल द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किसके बराबर होगा, देयर डॉट प्रोडक्ट, सो v डॉट a वेक्टर v डॉट a डिवाइडेड बाय magnitude of first vector, magnitude of second vector, so magnitude of vector v into magnitude of vector a, right, and that's equal to v dot a, v का अपना वैल्यू पुट कर दो, that's a plus b plus c, और इसका डॉट करना है विथ वेक्टर a डिवाइडेड बाय magnitude of vector v into magnitude of vector a। So implies cos alpha is then equal to, तो cos alpha किसके बराबर आएगा जिगरा, डॉट कर दो तो a डॉट a प्लस b डॉट a, सो b डॉट a, हाँ जिगर, प्लस c डॉट a, तो c डॉट a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। Implies this can be further written as cos alpha is then equal to, yes jigar, a dot product of vector with itself, square of its magnitude, so a dot a आएगा magnitude of a square। पढ़ा है हमने जिगरा कि एक वेक्टर का अगर हम खुद के साथ डॉट कर देंगे तो वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है, प्लस b डॉट a को लिख सकते हैं a डॉट b, और a डॉट b किसके बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर, सॉरी जीरो स्केलर के बराबर, तो यहां पे जीरो, चूंकि यहां पे था b डॉट a बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, सो इंस्टेड ऑफ b डॉट a वी कैन राइट a डॉट b, और a डॉट b किसके बराबर है, जीरो, प्लस c डॉट a, और c डॉट a भी किसके बराबर है, जीरो, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, बिकॉज b डॉट a is equal to a dot b and that's equal to 0। b dot a dot b के बराबर होगा और a dot b किसके बराबर है, 0 के बराबर। हाँ जिगर, तो implies cos alpha फिर किसके बराबर आएगा, cos alpha must be then equal to
0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसिल होगा, बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंप्लाइज दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, क्रॉस मल्टीपल कर दो, शाबाश, cos अल्फा के डिवाइड में 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1000, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए must be then equal to magnitude of v into cos alpha. So magnitude of v into cos alpha, keep that equation as equation number second. यहां रखने की भी जरूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया जिगरा किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ v into cos alpha. So here we have calculated cos alpha. In the similar fashion we are going to calculate cos beta also. Cos beta, and that's equal to, cos is cos. What is beta? Beta is an angle between vector v and vector b. So cosine of angle between vector v and vector b, and that's equal to, the cosine of angle between two vectors is equal to their dot product. So v dot b divided by product of their respective magnitudes, that is magnitude of vector v into magnitude of vector b, because cos theta is equal to v1 dot v2 divided by magnitude of v1 into magnitude of v2, that's equal to, हाँ जिगरा, put the value of v, क्या है value of v, a plus b plus c, so that's equal to a plus b plus c, और इसका डॉट करना है जिगरा किसके साथ, b वेक्टर के साथ, so dot b divided by magnitude of vector v into magnitude of vector b, that's equal, पहले a से डॉट करो, फिर b से डॉट कर दो, फिर c से डॉट कर दो, क्या आएगा, a dot b, so a dot b plus b dot b plus b dot b plus c dot b divided by magnitude of vector v into magnitude of vector b, and that's further equal to a dot b किसके बराबर है जिगरा, 0 plus b dot b, dot product of vector with itself, square of its magnitude, so that's equal to magnitude of b square, प्लस सी डॉट बी के बदले लिख सकते हैं बी डॉट सी, और बी डॉट सी किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बिकॉज क्यों जिगरा, क्योंकि बी डॉट सी, क्योंकि सी डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू बी डॉट सी, और वो बी डॉट सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 0 के बराबर है। तो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज और इंप्लाइज, तो cos बीटा फिर किसके बराबर आएगा, cos बीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहां पे स्क्वायर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक, और यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, which further implies that क्रॉस मल्टीपल कर दो तो क्या मिलेगा जिगरा, यहां पे क्रॉस मल्टीपल कर दो तो मैग्नीट्यूड b 1000 इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मस्ट बी देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस बीटा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू कॉस बीटा, तो मिला जिगरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। From condition first, magnitude of A is equal to magnitude of V cos alpha. From condition second, magnitude of B is equal to magnitude V cos beta. तो अगर A का मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड cos alpha के बराबर है, B का मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड cos beta के बराबर है, तो सिमिलरली इन द सिमिलर फैशन मैग्नीट्यूड ऑफ C फिर किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ V cos gamma. सो मैग्नीट्यूड ऑफ v cos gamma, ये आप जिगरा इवॉल्युएट भी कर सकते हो,
क्योंकि अगर आप यहां पे ले लोगे, यहां पे आपने cos अल्फा लिया था तो ये वाली कंडीशन आई थी, फिर cos बीटा लिया था, तो जब आप cos गामा ले लोगे तो cos गामा में से आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू cos गामा, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ A V cos अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ B V cos बीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ C V cos गामा के बराबर आएगा। नाउ from first we have magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of, now from first we have, हाँ जिगर, what we have from first, magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of C, so magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of C, which further implies that, yes Jigar, put the value of magnitude of A from here, that's magnitude of V cos alpha, so magnitude of V cos alpha is equal, put the value of magnitude of B, what is that, magnitude V cos beta, so magnitude of V cos beta, and that's equal, put the value of magnitude of C, and that's equal to magnitude of V into cos gamma, which further implies that मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड V इक्वालिटी में है तो कैंसिल होंगे, क्या बचेगा जिगरा, cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, अप्लाइंग cos इनवर्स थ्रू आउट, cos इनवर्स cos आइडेंटिटी फंक्शन बनेगी तो बचेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। हमने क्या लिया था जिगरा कि ये वेक्टर a प्लस बी प्लस सी जो है, ये वेक्टर a प्लस बी प्लस सी जो है, जिसका हमने नाम रखा था वेक्टर v, ये सपोज अल्फा बना रहा है विथ a वेक्टर बीटा बना रहा है विथ b वेक्टर एंड गामा बना रहा है विथ c वेक्टर, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा बीटा के बराबर बीटा गामा के बराबर आ गया, मींस ये एंगल बनाएगा सेम विथ a b एंड c, thus vector v which is equal to a plus b plus c is equally inclined with, yes, a vector b vector and c vector, तो ये सेम एंगल बनाएगा विद द वेक्टर्स a b एंड c। हमने लिया था सपोज ये अल्फा बना रहा है विद a, बीटा बना रहा है विद b, गामा बना रहा है विद c, बट जब हमने ये कंडीशन सॉल्व कर दी तो उसमें से आया अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों एंगल सेम है, जब ये तीनों एंगल सेम है तो ये वेक्टर v a b और c के साथ सेम एंगल बनाएगा, जब सेम एंगल बनाएगा ऑब्वियसली वेक्टर v मस्ट बी इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर्स a b एंड c। सो ऑल अबाउट द क्वेश्चन। Now we are on question number 15 of this miscellaneous exercise, and in that question number 15 we have a condition for two vectors a and b, two non-zero vectors, a not equal to zero vector, b not equal to zero vector। So हमारे पास दो non-zero vectors हैं a and b, और उनके लिए कंडीशन क्या है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर। तो मतलब LHS a प्लस बी डॉट a प्लस बी RHS के बराबर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ एक कंडीशन में, कब, अगर ये a और b आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने LHS RHS के बराबर ले लिया है, तो यहां से कंडीशन, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से कंडीशन क्या आनी चाहिए कि a एंड b मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो a plus b dot a plus b is equal to magnitude of a square plus magnitude of b square if and only if, ऐसे लिखते हैं जिगरा, if and only if, पढ़ा है हमने। so if and only if, पहले डॉट कर दो a से a plus b को, फिर b से a plus b को, तो क्या आएगा a dot a, so if and only if a dot a plus a dot b, so a dot b plus b dot a, b dot a plus b dot b, so b dot b, and that's equal to magnitude of a square plus magnitude of b square, यानी LHS RHS के बराबर आएगा if and only if का, ठीक है जिगरा।
So if and only if a dot product of vector with itself, square of its magnitude, so magnitude of a square plus a dot b को ऐसे ही रखेंगे a dot b plus b dot a के बदले लिखेंगे a dot b. Why? Because dot product of vectors is commutative plus b dot b, again the dot product of vector with itself yields the square of its magnitude, so magnitude of b square, and that's equal to magnitude of a square plus magnitude of b square. If and only if. कब ये LHS RHS के बराबर आएगा? If and only if. Because यहां पे हमने कंडीशन यूज कर दी है, because v dot v, the dot product of vector with itself always is equal to square of its magnitude, and यूज किया है v1 dot v2 must be equal to v2 dot v1, that is the dot product or scalar product of vectors is always commutative. So if and only if. अब LHS में भी magnitude of a square, RHS में भी magnitude of a square, so it will cancel out. RHS में भी magnitude, LHS में भी magnitude of b square, RHS में भी magnitude of b square, so it will cancel out. तो यहां पे बचेगा a dot b plus a dot b, so that is equal to 2 times a dot b must be equal to RHS में 0. So if and only if. 2 यहां पे मल्टीपल है तो RHS में ले लो डिवाइड होगा, 0 डिवाइड बाय 2 इज 0, तो इंप्लाइज a डॉट b 0 के बराबर आ रहा है. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा, और ये दोनों वेक्टर्स a भी नॉन जीरो वेक्टर है, b भी नॉन जीरो वेक्टर है. जब दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा, सो दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इफ एंड ओनली इफ a is perpendicular to b, a vector is perpendicular to b vector, because as a vector is not equal to 0 vector, b vector is not equal to 0 vector. क्योंकि a नॉन जीरो वेक्टर है, b नॉन जीरो वेक्टर है, और दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, so obviously they must be perpendicular, so a is perpendicular to b, and hence the proof of the question. तो क्वेश्चन क्या था कि LHS RHS के बराबर आएगा if and only if under the condition a and b must be two perpendicular vectors. और जब हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें मिला कि a is perpendicular to b. So all about question number 15 of this miscellaneous exercise. Now lies the next question, and that's question number 16 of this miscellaneous exercise. And in that question, this question number 16, this an objective type question. And in that objective type question, it is given that theta is the angle between vectors a and b, then a dot b is greater or equal to 0. Given theta is the angle between vector a and vector b, then a dot b is greater or equal to 0 if. अगर थीटा a और b के बीच में एक एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा. कब? अब वहां पे ऑप्शंस दे रखी हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है. शाबाश जीरा, पहले इसे इवॉल्युएट कर देंगे. तो a डॉट b इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 कब? We will put the definition of a dot b, dot product of two vectors. किसके बराबर आता है? Product of their magnitudes into cosine of angle between them. So that's equal to magnitude of a, magnitude of b, cos theta must be greater or equal to 0. That is if, yes Jigra, magnitude of a, magnitude of a vector must be greater or equal to 0. Magnitude of b must be greater or equal to 0 because magnitude of vector cannot be negative. So ये greater or equal to 0 हो सकता है, तो ये obviously true है, इसलिए cos theta must be greater or equal to, so that is if cos theta is greater or equal to 0. तो cos theta is greater or equal to 0, एंगल जो आपके पास थीटा है और थीटा का कोसाइन वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, यानी नॉन नेगेटिव है. तो कौन से क्वाड्रेंट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो नॉन नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नॉन नेगेटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है जिगरा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी नॉन नेगेटिव होगा, इंक्लूडिंग दैट दिस x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस. तो cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 इन व्हाट क्वाड्रेंट? फर्स्ट. तो कहां से स्टार्ट होगा?
0 से लेके π/2 तक, इसलिए क्या मेंशन कर देंगे, दैट इज इफ 0 इज लेस आर इक्वल टू थीटा इज लेस आर इक्वल टू π/2। ये थीटा जो है इट मस्ट लाई इन द क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2 बिकॉज दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 0 से स्टार्ट होगा। अब जो 0 से स्टार्ट होगा और π/2 पे एंड होगा, क्योंकि cos π/2 जो आता है वो 0 के बराबर आता है, तो 0 ग्रेटर जो है 90 पे 0 आएगा, और अगर हम 0 से 90 तक जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए 0 एंड पॉजिटिव दैट इज नॉन नेगेटिव, तो cos नॉन नेगेटिव आ रहा है, तो थीटा जो है डेफिनेटली लाई करेगा इन द क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2। सो ऑप्शन according to the condition, according to the question, option B is the correct option. So this is all about the objective type question, and that's question number 16. Now we are on question number 17 of the miscellaneous exercise, and it is again an objective type question, and in that question we have two unit vectors A and B, and theta is the angle between them. Then a plus b is a unit vector if, तो जीरा आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, a एक यूनिट वेक्टर है, b एक यूनिट वेक्टर है, और थीटा इनके बीच में एक एंगल है। फिर ये कह रहा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर भी होगा यूनिट वेक्टर, कब? ठीक है, सो गिवन यहां पे कंडीशन जो है, गिवन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, a वेक्टर और b वेक्टर जो है दैट आर यूनिट वेक्टर्स, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच में जो एंगल है वो है जिगरा थीटा। सो देयरफॉर जब a और b यूनिट वेक्टर्स होंगे तो ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1 and magnitude of b vector must be equal to 1, as both the two vectors are unit vectors. When both the two vectors are unit vectors, obviously their magnitudes must be equal to 1. Now अब ये कह रहा है कि a plus b भी होगा यूनिट वेक्टर, कब? Now a vector plus b vector is a unit vector, ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा if, कब? ये यूनिट वेक्टर तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा, सो दैट्स इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है जिगरा, सो दैट इज इफ अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी ऑब्वियसली 0 के बराबर आएगा, बिकॉज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, so that is magnitude of a plus b square is equal to 0, square is 0, that is if, अभी स्क्वायर क्यों कर दिया? because the square of magnitude of a vector is equal to the dot product of vector with itself, और जब ही डॉट ले लेंगे तभी तो जिगरा एंगल इसके बीच में जो एंगल है वो निकल के आएगा, इसीलिए स्क्वायरिंग कर दी ऑन बोथ साइड्स। तो सपोज इसको हम ट्रीट करेंगे, ये वेक्टर v है, तो वेक्टर v मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर किसके बराबर आता है? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड दैट्स इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। तो वेक्टर क्या है एक्चुअली? a प्लस बी, सो a प्लस बी डॉट a प्लस बी, एंड दैट्स इक्वल टू 0, because the dot product of vector with itself always is equal to the square of its magnitude, because v dot v is equal to magnitude of v square. So that is if, yes जिगरा डॉट कर दो, सो a dot a dot a plus a dot b, so a dot b plus b dot a plus b dot b, and that's equal to 0. That is if, yes jigra, a dot a dot product of vector with itself, square of its magnitude, so magnitude of a square plus a dot b is a dot b plus b dot a के बदले लिखेंगे जिगरा a dot b, because dot product of vectors is commutative,
plus b dot b, that's magnitude of b square, and that's equal to what? 0. That is if magnitude of a that's equal to 1 and 1 का स्क्वायर फिर से 1 के बराबर आएगा, प्लस a dot b plus a dot b, that is 2 times a dot b, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर and that must be equal to 1 square, which is equal to 1, and that's equal to 0, because magnitude of a is equal to magnitude of b is equal to 1, as both the vectors a and b are sort of unit vectors. So that is if हाँ जी गए 1 plus 1 and that's 2, so 2 times a dot b, 2 times a dot b must be equal to 1 plus 1, ये 2 है तो उस साइड में -2 बनेगा, so -2. That is if 2 times, या 2 और 2 कैंसिल हो गए, that is if a dot b is equal to -1. ठीक है जिगरा? That is if अब a dot b का वैल्यू पुट कर दो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इनटू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा is equal to -1. That is if, ठीक है जिगरा? सॉरी जिगरा, यहां पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई. दैट इज a plus b is a unit vector if magnitude of a plus b is not equal to 0 but that's equal to 1, because a vector is a unit vector if its magnitude is equal to 1 not 0. so sorry for that. यहां पे ये 1 आएगा, यहां पे फिर से 1 आएगा, here it is 1, it's again here 1, और यहां पे भी ये 1 ही आएगा. सो 1 plus 1 that's 2, उस साइड में ले लो तो -2 बनेगा. सो 2 times a dot b is equal to 2 times a dot b is equal to 1 minus 2. 2 times a dot b is equal to 1 minus 2. 2 times a dot b is equal to 1, यहाँ पे plus 1 और plus 1 that's minus 2. So a dot b is equal to 1 minus 2 that's equal to -1. नाउ यहां पे 2 जो है मल्टीपल है तो इस साइड में डिवाइड होगा. सो a dot b is equal to -1 divided by 2. a dot b is equal to -1 divided by 2 implies, or that is if. Now put the value of this a dot b, dot product of two vectors, into in the general definition, and that's equal to magnitude of vector a, magnitude of vector b into cosine of angle between them. So cos theta is equal to -1 divided by 2. So that is if magnitude of a is 1, magnitude of b is 1, because both a and b are sort of unit vectors, into cos theta, and that's equal to -1 divided by 2. That is if 1 into 1 into cos theta, so cos theta is equal to -1 by 2. That is if cos theta is equal to minus, cos कहां पे होता है 1 by 2, 60, so cos pi by 3. So that is if, यहां पे प्लस cos थीटा है, यहां पे माइनस cos है, तो प्लस और cos में हम cos इनवर्स नहीं ले सकते, इसलिए इस माइनस को हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा विद इन द एंगल. तो कैसे ले लेंगे? सो cos थीटा must be equal, instead of minus cos pi by 3 we can write cos of pi minus pi by 3, because क्यों जीरा? Because cos of pi minus theta is always equal to minus times cos theta, because cos of pi minus theta is always equal to minus cos theta. So instead of minus cos theta we have written here cos of pi minus theta. So that is if cos theta is equal to cos of pi minus pi by 3, that is 2 pi by 3. अब 2 pi by 3 cos inverse का प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा obviously, so operating cos inverse on both sides, cos inverse cos बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन, बचेगा थीटा. So that is if
थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स कॉस बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन, तो बचेगा 2π/3. सो दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 2π/3. सो थीटा का वैल्यू 2π/3 आ रहा है. इसका मतलब ऑप्शन डी इज द अकॉर्डिंग टू द condition, according to the question, option D would be the correct option. So all about this question number 17. Now we are on question number 18, and in that question number 18 we need to calculate the value of I dot j cross k plus j dot I cross k plus k dot I cross j, while I, j and k are mutually perpendicular unit vectors. As I is the unit vector, I cap is the unit vector along positive direction of x axis, j is along y axis, and k is along the z axis. So obviously all the three vectors, unit vectors I, j and k must be mutually perpendicular. So when they are mutually perpendicular vectors, we need to calculate the value of this thing. तो जिगरा इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो I is I डॉट पहले j क्रॉस k कैलकुलेट कर देंगे. तो j क्रॉस k मैंने बता दिया है, अगर पहले I ले लेंगे, फिर J ले लेंगे, फिर K ले लेंगे, तो I क्रॉस J K के बराबर आएगा, J क्रॉस K I के बराबर आएगा, K क्रॉस I J के बराबर आएगा. ये सब चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं ऑब्जर्वेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में. तो जिगरा अगर पहले I बाद में J बाद में K फिर वापस I ले लोगे तो इसी तरह आएगा. लेकिन अगर आपका साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, अगर पहले आप J ले रहे हो फिर I ले रहे हो, वो K के बराबर आएगा नो डाउट, बट माइनस टाइम्स के. तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं. सो आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई के बराबर आएगा. सो आई डॉट आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के आना चाहिए था के क्रॉस आई, लेकिन ये आई क्रॉस के बराबर, ये आई क्रॉस के है, नो डाउट जे के बराबर आएगा बट माइनस टाइम्स जे, प्लस के डॉट I क्रॉस जे, तो वो k के बराबर आएगा. सो k बिकॉज I क्रॉस j इज इक्वल टू k and that's equal to minus times j cross I. The cross product of vectors is not generally commutative, but v1 cross v2 is equal to minus times v2 cross v1. That's equal. अब I dot I वो 1 के बराबर है, पढ़ा है हमने डॉट प्रोडक्ट में. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, जे डॉट जे वो भी 1 के बराबर है, प्लस के डॉट के वो भी 1 के बराबर है. सो प्लस 1 माइनस 1 विल कैंसल आउट एंड द रिजल्ट वुड बी 1. तो यहां पे रिजल्ट जो आएगा जिगरा वो 1 आएगा, मीन्स ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 18. नाउ lies question number 19, the last question of this miscellaneous exercise and the last question of the unit vectors, and that is, if theta is the angle between any two vectors a and b, then given theta is the angle between vector a and vector b, then फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर आएगा इफ. कब? तो जिगरा अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और उनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा, तो तब ये पूछ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आएगा इफ. कब? सो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले हम ए डॉट बी की डेफिनेशन यहां पे अप्लाई कर देंगे. So A dot B dot product of two vectors, magnitude of A, magnitude of B, cos theta, cosine of angle between them. ठीक है जिगरा, and that's equal to magnitude of A cross B. So magnitude of A, magnitude of B, sin theta n cap, because A cross B must be equal to magnitude of A, magnitude of B, sin theta n cap, according to the definition of cross product. So implies, or that's if magnitude of A, magnitude of A, that's magnitude of A mod of magnitude of B. So magnitude of B, and it is here cos theta, is equal to magnitude of A, that's again magnitude of A, it is again magnitude of B, it's again plus sin theta, and it's again n cap, sorry, into 1.
because magnitude of n cap is a unit vector, so its magnitude must be equal to 1. That is A. यहां पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीपल है, यहां पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीपल है, सो इट विल कैंसल आउट. तो क्या बचेगा जीरा? cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा. और दिस कैन बी राइट cos थीटा के यहां पे मल्टीपल में सपोज 1 है, तो cos थीटा को उस साइड में ले लो, वहां पे डिवाइड होगा तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है जिगरा, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है cos थीटा. लेकिन सपोज हम cos थीटा के मल्टीपल में रखेंगे 1, तो फर्क नहीं पड़ेगा. अब 1 जो है 1 इंटू cos थीटा है, तो cos थीटा यहां पे मल्टीपल है, तो उस साइड में ले लो, डिवाइड होगा, तो वहां पे बचेगा sin थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज sin थीटा बाय cos थीटा, एंड दैट्स tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा 1, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1. दैट इज इफ tan थीटा इज इक्वल, tan कहां पे होगा? 1, ऑब्वियसली पाई बाय 4 पे 45, so tan pi by 4. That is if operating tan inverse on both sides, as pi by 4 is the principal value, obviously lies in the range of tan inverse, so means यहां पे बचेगा थीटा, tan inverse और tan बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन, so theta must be equal to pi divided by 4. So for two vectors A and B, if theta is the angle between them such that the magnitude of their dot product is equal to the magnitude of their cross product, then the angle between them must be equal to pi divided by 4. So theta is equal to pi divided by 4, means option B is the, according to the question, option B is the correct option. So that's all about the miscellaneous exercise, and that's all about the unit vectors. Now in the subsequent classes we are going to start the next unit.